Good morning, everyone. So today is the last lecture on this topic, and after that we are going to start with a new topic, that is heat. Okay, you are going to get two new books today. One is on heat, and other is on projectile motion. Okay, till you are being told. In fact, in the next lecture you will have to get heat because I am starting with that topic. Right? Now today you don't have to copy anything from the board, because I have already given you full solution of HOTS. Also, there are some real typical questions which I have written on the extreme right side of the board. Okay, and those questions I have solved in your iPad notes only. Right? That means it is not that here only synopses are there. Last page is few pages, 14, 15 and 16. You will see some solved examples also. The reason is either they are very tough, or they are lengthy, or they are frequently asked questions. So what happens is, when your exams are on, that time you're studying definitely for sure synopsis ones. Definitely. You are definitely studying iPad notes also. So when you come across those questions again and again and again, then you realize, okay, fine, this is done to be done this way. Because they are really typical questions. They are tricky questions. Right? शुरू करें बेटा? Concentrate. ये जो मैंने राइट साइड पे लिखे हुआ है ये पेंडिंग एमसीक्यूज है, यू कैन क्रॉस चेक. द फर्स्ट एमसीक्यू, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. इसका मतलब इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली वी स्टडीड अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. याद करो बेटा, याद करो. द सरफेस वाज लाइक दिस. Right? If the surface was like this, then the normal reaction should be like this. But the surface is like this. Then don't you think the normal reaction will be tilted? If this is the body, and if this is the inclined surface, then how will you draw different vectors? The first vector, total focus on the board please. The first vector, who is this? Center of gravity, right? If it's a center of mass, that means you're talking about mass. But when it's a center of gravity, that means you're talking about weight. Who is this? Weight. And how is it acting? Always vertically downwards, right? Who is this? Theta. Angle of inclination, that is theta. And who is going to be this? Normal reaction. Can you write m equal to mg? Answer is certainly no. तो क्या सिखाया था मैंने? आपके पास जो भी वेक्टर्स है उसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करो. 1 and 2. Now do you agree with me? This is theta. Yes. Do you agree with me? This is also theta. Yes. No doubt about this. यहाँ तक समझा? Let us read the question further. The component of the force of gravity. ये दोनों में से ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? N की mg. राइट? तो आपको उसके कंपोनेंट्स ढूंढने, सो डोंट यू थिंक दिस कंपोनेंट इज mg cos theta and this component is mg sin theta. This component is mg cos theta and this component is mg sin theta. So कौन सा कंपोनेंट ये बॉडी को नीचे लेके आएगा? That is what they have asked. mg sin theta. Yes or no? So the component of force which is acting or bringing the body downwards, should it not be mg sin theta as per the diagram? Yes. Mass of the body is given how much? 10 kg. अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा. कभी कभी आप लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए they will give you all the options in kilogram weight deliberately. Example, second question itself, very good. तो उसमें आपको g सब्स्टिट्यूट नहीं करना होता है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ since options in Newton, मतलब मुझे यहाँ पे g सब्स्टिट्यूट करना है. राइट? उन्होंने जो भी जी दिया है, अगर उन्होंने नहीं दिया है यू कैन टेक इट एज 10. दिया है तो लेना पड़ेगा. तो ये जो मैं आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं ये मैं जी के लिए लिख रहा हूं कि जी सब्स्टिट्यूट कब करने का और जी सब्स्टिट्यूट कब नहीं करने का.
इसके बाद वाले प्रॉब्लम में ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन किलोग्राम वेट, कैन यू से दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट, तो उसमें जी सब्स्टिट्यूट नहीं करने का मतलब आपको आंसर भी केजी वेट में ही लाना है, इसमें मुझे जी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। yes or no, how much is given 9.8, is it sin 30, right? So this is 98 into half, right? That means your answer should be 49 न्यूटन। आज बेटा मैंने जानबूझ के डीसीटी नहीं रखा हुआ है क्योंकि भले दिखने में सिर्फ 16 क्वेश्चंस दिखते हैं, but every question takes about 5 to 6 minutes. Every question. There are some questions which may take 10 minutes also. Okay, so that's the reason I did not want to keep DCT today, but then work very very hard. Reason, previous lecture and this lecture we have done all very very tricky things. I mean previous lecture also was tough. We did 3 concepts only in the previous lecture. One was the concept of normal reaction, other was the concept of tension, and one more concept we did. नॉर्मल रिएक्शन वाला तो किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस करेक्ट, बराबर। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर भी कॉन्सेप्चुअली उतना ही इम्पोर्टेंट था और आज का लेक्चर टफ है, सो यू हैव टू बी सुपर डुपर केयरफुल। बेटा फ्यूचर में ये रिवाइज करना है तो मांग लेना मेरे पास, ये पूरा लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, यस और नो? एंड एनीवेज द सॉल्यूशंस आर गिवन वेरी ब्यूटीफुली, सो यू डोंट हैव टू वरी, राइट? आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन, राइट? Either you will see the board work, जहाँ जहाँ मैंने iPad पेज नंबर लिखा है ना, there you don't need to see the board work, that part I will rub, right? There you will see the iPad codes, right? You are on first question, HOTS, read the question, look at the board work, read the question again, look at the board work, revise the board work, then I proceed. अगर दोनों ऑप्शन में न्यूटन भी होगा और केजी और तो बेटा उनको एक ऑप्शन फिर ये देना पड़ेगा कि बोथ है एंड बी। अब जैसे तूने जो पूछा, अगर बेटा मैं जी सब्स्टिट्यूट नहीं करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 10 इंटू हाफ, 5 kg वेट, मेरा आंसर आएगा 5 kg वेट। अब मैंने एक ऑप्शन दिया 5 kg वेट, एक ऑप्शन दिया 98 न्यूटन, फिर एक ऑप्शन कुछ आड़ा तेरा दूंगा और फोर्थ ऑप्शन मुझे ये देना पड़ेगा कि बोथ ए एंड बी। यस, व्हाट यू आर सेइंग आल्सो हैपेंस। तो एक काम करो बेटा, अब इसमें लिख के रखो 49 न्यूटन आंसर आया ना अपना, उसके बाजू में लिख के रखो means 5 kg weight, means 5 kg weight. Apply common sense. आप लोग kg weight को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हो? मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो आप न्यूटन को kg weight में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 9.8, परफेक्ट। हाउ डू यू कन्वर्ट kg weight टू न्यूटन? इधर देखो सब लोग, kg weight टू न्यूटन क्या करते हो बेटा? सोचो, kg weight टू न्यूटन आप क्या करते हो? आर यू मल्टीप्लाइंग बाय ग्रेविटी? तो न्यूटन टू केजी वेट क्या करने का? शुड यू डिवाइड बाय ग्रेविटी? एक काम करो, एट द टॉप ऑफ द पेज लिख के रखो, इट विल हेल्प यू। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज नंबर जो भी है लिख के रखो। हाउ टू कन्वर्ट केजी वेट टू न्यूटन? मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। एंड हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन टू केजी वेट? डिवाइड बाय ग्रेविटी। एकदम बेटा आईपैड नोट्स में भी लिख के रखना है तो लिख के रखो, या तो ये पेज पे लिख के रखना है तो लिख के रखो। इनफैक्ट आई सजेस्ट आईपैड नोट्स के एकदम फर्स्ट पेज पे लिख के रखो, इधर लिख के रखो इधर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन ऑल चैप्टर्स ऑफ मैकेनिक्स। वेरेवर वेट वर्ड कम्स फ्रॉम, वेरेवर दिस हेल्प्स, तो लिख के रखो। हाउ टू कन्वर्ट केजी वेट। अच्छा, केजी वेट का एक ऑल्टरनेट वर्ड और है, कौन सा है वो? केजीएफ। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। kgf means kilogram force, kg weight means kilogram weight. Both are gravitational units. Official unit is Newton. फर्स्ट प्रॉब्लम समझा बेटा? सुपर डुपर श्योर? ये पूरा असाइनमेंट बार बार प्रैक्टिस करने का, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सीरियसली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट? सो जब भी टाइम मिलता है, कीप गोइंग थ्रू हॉट्स वाला क्वेश्चंस। सेक्शन बी नीट स्टूडेंट्स के लिए, सेक्शन बी मैथ स्टूडेंट्स के लिए JEE। आर यू ऑन सेकंड क्वेश्चन? शुरू करो बेटा। अ बॉल ऑफ मास 3 kg सस्पेंडेड, हैंगिंग या तो सस्पेंडेड में किसका कॉन्सेप्ट आता है? ऑलवेज, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2, फोकस हियर। दिस इज
the ball of mass 3 kg suspended. बराबर, this is ball of mass 3 kg suspended. So when it is at rest, what forces are acting? When it is at rest, what forces are acting? Can I say this is 1 and this is 2? Who is this? W is equal to mg, which is equal to weight. And who is this? Tension. Yes or no? Tension is always acting along the string, along the wire, along the rope, along the cable. अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, किसको? बॉब को. थैंक यू. आपने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया बेटा. जैसे आपने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, ये ऐसे तो मूव नहीं होगा ना, डेफिनेटली ये ऐसे मूव होगा. यस और नो? सो नाउ द बॉब इज हियर. नाउ द बॉब इज हियर. हैव यू अंडरस्टूड दिस? राइट. एंड दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग. इसका मतलब बॉब पहले ऐसे था, बॉब पहले ऐसे था. हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसा है. राइट. आई कैन नेवर चेंज द वेक्टर, बट आई कैन ऑलवेज शिफ्ट द वेक्टर. तो ये वेक्टर बेटा उठा के मैंने यहां पे ड्रॉ किया, चलेगा? ये वेक्टर उठा के मैंने यहां पे ड्रॉ किया, चलेगा? सो हु इज दिस? हॉरिजॉन्टल फोर्स. समझा कि बाउंसर गया? हु इज दिस? हॉरिजॉन्टल फोर्स. बराबर ना? दिस इज एफ हॉरिजॉन्टल. करेक्ट. तो ये बॉब पे और एक फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रहा था, which is always there. Can I say this is this force? Is it weight? Yes. Right? अच्छा, इसको मैं वर्टिकल फोर्स भी बोल सकता हूं, सोचो. एंड वर्टिकल फोर्स का मतलब वेट, because weight is always acting vertically downwards. Please let me know. Have you understood this red vector? Have you understood this blue vector? No compromise in that. I think they have asked you the red vector. I think they have asked you the red vector. बराबर. ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है. शुरू करो. एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो. Is this theta? Correct? Can I complete a parallelogram like these? सोचो. So do you agree with me? ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ. अगर उन्होंने मुझे रिजल्टेंट फोर्स पूछा, रिजल्टेंट पूछा नहीं है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है. अगर बेटा रिजल्टेंट फोर्स पूछा होता तो मैं क्या लिखता? एनी आइडिया? शुड इट बी रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर एंड वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर? अगर पूछा होता तो. नहीं पूछा है, नहीं पूछा है. क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स. अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, आई थिंक दे हैव गिवन मी थीटा, बराबर ना? अगर ये थीटा है बेटा, तो ये थीटा हुआ कि नहीं? सोचो. नो कॉम्प्रोमाइज, सुपर डुपर श्योर. अगर ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये दोनों पैरेलल लाइंस है, बराबर. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो बेटा ये दोनों एंगल जब इक्वल होते तो कौन सा हुआ? वो. ये दोनों एंगल्स इक्वल होते तो कौन सा हुआ? और ये दोनों, तो ये दोनों कौन सा हुआ? करस्पॉन्डिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. If I focus only on this particular diagram, so from the diagram which I have marked as a star, सोचो बेटा, सोचो. Can I write tan of theta is opposite side upon adjacent side? सोचो. Right? tan of theta मतलब tan of 60, क्योंकि उन्होंने दिया है. ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? थीटा का ऑपोजिट साइड कौन हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन? वेरी गुड. तो ये लाइन है ना, तो इट शुड बी एफ हॉरिजॉन्टल. ये और ये दोनों सेम है. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो इज इट हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है, वर्टिकल फोर्स इज वेट. सोचो. हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है, वर्टिकल फोर्स इज वेट. सोचो. समझा कि वापस बोलिए? सुपर श्योर. आई होप आई एम रीजनेबली स्लो. समझा? नो कॉम्प्रोमाइज प्लीज. नहीं समझा तो बिंदास पूछो, मेरे लिए 10 सेकंड का काम है. समझा ये पार्ट? योर प्रॉब्लम इज ओवर. व्हाट इज 1060? √3. राइट. व्हाट इज FH? पूछा है. अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा. वेट ऑफ द बॉडी क्या दिया है? सॉरी,
इसको मैं 3 kg ही लिखूंगा, इसको मैं वेट इक्वल टू mg लिख रहा हूं, नो डाउट, राइट। लेकिन इसको मैंने 3 लिखा और इधर मैंने ग्रेविटी सब्स्टिट्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऑप्शन दिस टाइम आर नॉट इन न्यूटन, ऑप्शन दिस टाइम आर इन kg weight, options are in kg weight. So can I say my answer of horizontal force is 3√3 kg weight. Most important is ग्रेविटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, ग्रेविटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, समझा? अदरवाइज मेरा आंसर क्या आता? 3√3 into 10, that means 30√3 न्यूटन, 30√3 न्यूटन। आगे और आप लोगों को कॉम्प्लिकेट करके दे रहे हैं तो वो लोग √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नंबर देंगे। सॉरी क्या दिया है? नहीं बेटा वो गलत गलत, 3√3/2 is wrong. Can we solve it by taking t equal to mg and when the bob is at That is what is given in the solution given behind and it is wrong, right? आपको ये solution बेटा एकदम परफेक्टली देखना है ना, मैंने 2 मेथड से सॉल्व करके दिया है। Are you on iPad notes page 16 please? Are you on iPad notes page 16? Left lower half, left lower half, 2 मेथड से दिया है। अभी जो मैंने मेथड से किया वो मेथड 1 से किया बोर्ड पे, मेथड 2 थोड़ा लेंथी है लेकिन मैंने iPad नोट्स में दोनों दिए, राइट? तो हियर योर चॉइस, बोर्ड वर्क भी देखो, iPad नोट्स भी देखो, दोनों देखो। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं दे आर ऑल खोपड़ीज, दे आर ऑल खोपड़ीज, बी केयरफुल प्लीज। सेकंड क्वेश्चन समझा? एग्जाम में बबल मार्क करना, तो डायग्राम नहीं बनाएगी तो कौन देखने आने वाला है? बट इंपॉर्टेंट इज डायग्राम किए बगैर तुम लोग ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। वेक्टर्स का चैप्टर ऐसा है ना, जितने क्वेश्चन में तुम लोग डायग्राम बना पाओगे ना उतना बेटर विजुअलाइजेशन होगा। बगैर डायग्राम के तुम कैसे सॉल्व करिए बेटा, इसको बता दो। बगैर डायग्राम के तुम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाजू वाली साइड कौन सी है, सामने वाली साइड कौन सी है, वो पता ही नहीं चलेगा जब तक थीटा पता नहीं चलेगा, और जब डायग्राम बनाओगे तभी थीटा पता चलेगा। सो माय स्ट्रॉन्ग सजेशन इज, कभी भी कोई प्रॉब्लम पढ़ते हो, राइट, अगर वो एकदम प्योर थियोरेटिकल नहीं है ना, फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन, तो अभी इसमें डायग्राम बनाने जैसे कुछ है ही नहीं, कम ऑन, मेमोरी बेस्ड। बट जिधर नंबर्स आया, राइट, या तो ऐसा कुछ डायग्राम रिलेटेड, वेक्टर कंपोनेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रॉ द डायग्राम, ऑलवेज। Vector is a chapter which is maths plus drawing. Vector is a chapter which is maths plus drawing and application everywhere in physics. Okay? Second question, खोपड़ी मार्क करो बेटा। क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड वर्क पढ़ो, iPad नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड वर्क पढ़ो, iPad नोट्स पढ़ो, then I proceed. अब ये पेज 16 पे जो लेफ्ट साइड पे लोअर हाफ क्वेश्चन था ना, वहाँ पे हम नंबर देके रखो कि इट इज असाइनमेंट 4 ही है ना कि 5, सॉरी असाइनमेंट 5 क्वेश्चन 2, असाइनमेंट 5 क्वेश्चन 2, दिस इज iPad पेज नंबर कौन सा है? 16। दिस इज असाइनमेंट 5 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझा बेटा सबको? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 समझा? मैं जब बोलता हूँ क्वेश्चन टफ है मतलब डरना नहीं है बिल्कुल भी, टफ है मतलब ज्यादा ध्यान देना है, 2-3 बार सॉल्व करना है, 5 बार सॉल्व करना है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 3 वाज डन, आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 4? Absolutely popular question, super duper popular, right? Frequently asked question. ये क्वेश्चन बेटा 3
डिफरेंट स्टाइल्स में पूछा जाता है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स, राइट? दिस क्वेश्चन कम्स इन द चैप्टर सर्कुलर मोशन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन द चैप्टर ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखो, और ये दोनों चैप्टर्स मैं ही लेने वाला हूँ, राइट? तो वो टाइम पे मैं आपको याद करवाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने वेक्टर्स में किया था। खाली विजुअलाइज करो बेटा, खाली विजुअलाइज करो। सपोज यू आर इन अ कार, सपोज यू आर इन अ कार, टोटल फोकस हियर, और मे बी यू आर इन अ ट्रेन, ओके? द कार इज एट रेस्ट, या तो द ट्रेन इज एट रेस्ट, द कार इज एट रेस्ट, या तो द ट्रेन इज एट रेस्ट। दिस इज द रूफ ऑफ द कार, and here a pendulum is tied. Mind you, car is at rest. So what will happen? Can I say mg down, tension up? But अगर कार ने बेटा ये डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, now this is car in motion. What do you think? What will happen? Can you visualize something? What will happen? ये आगे की साइड पे जाएगा कि पीछे की साइड पे? कार आगे गया ना बेटा। आप बस में खड़े हो, आपको बैठने का सीट मिला ही नहीं, बस फुल है, बस स्टार्ट हुआ तो आप पीछे जाओगे, राइट? ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो आप आगे जाओगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस आगे गया तो आप पीछे जाओगे बैलेंस करने के लिए, राइट? तो कार इज इन मोशन ऑन राइट साइड, नो? सो डोंट यू थिंक द बॉब विल बी थ्रोन ऑन लेफ्ट साइड? पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब ये कुछ एंगल बनाएगा इधर। First question which they ask is what is the angle width? Second question is what is the net acceleration acting on this bob? Common sense apply करो, बिल्कुल इसके जैसा डायग्राम, बिल्कुल, राइट? ये कार का एक्सेलरेशन सपोज a है, a, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो बेटा ये बॉब पे -a एक्ट होगा कि नहीं? Why -a? न्यूटन्स थर्ड लॉ, करेक्ट? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। तो ये कौन हुआ बेटा? -a। अच्छा ये कौन है? कॉमन सेंस अप्लाई करो। ये कौन है? ये कौन है? इधर अभी मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है, ma नहीं लिखा है, सिर्फ a लिखा है। तो आपको इसको क्या लिखना चाहिए? mg नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ g लिखना चाहिए। समझा कि वापस बोलो? इधर मैंने a लिखा कि ma, एक्सीलरेशन लिखा कि फोर्स, इधर मुझे g लिखना चाहिए कि mg। क्यों? एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन शुड गिव यू एक्सीलरेशन। समझा? चलो ना, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो? ये मैंने ma लिखा अभी, ठीक है? ये मैंने ma लिखा अभी, ठीक है? तो अभी मैं इसको क्या लिखूंगा? mg लिखूंगा। कन्विंस नाउ? यस और नो? डायग्राम कंप्लीट करो, वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करो। सो विल इट बी लाइक दिस? विल इट बी लाइक दिस? सोचो, आर यू गेटिंग दिस? वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब? ये कौन सा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा फोर्स है? वर्टिकल। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। एम आई राइट? एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि थीटा कितना है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं नेट फोर्स कितना है, एंड देयरफॉर तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं नेट एक्सीलरेशन कितना है, राइट? बाय एनी चांस डायमेंशंस में ये किया है बेटा, t is 2 pi root of L by g. Mahesh sir has introduced this in the chapter. t is equal to 2 pi root of L by g. सुना है? What is this? Time taken by the particle to complete one oscillation. नहीं सुना है तो ना बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुना है नहीं सुना है? जान कोई बात नहीं। जब ये सुन लो मुझे बोल देना, वो फोर्थ क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट? क्वेश्चन शुरू करो, प्लीज लेट मी नो हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम, बिकॉज नाउ इट इज वेरी इजी, नाउ इट इज वेरी इजी। शुरू करो। शॉर्ट, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हुआ कि नहीं? बराबर? ये थीटा है तो ये थीटा हुआ कि नहीं? मुझे थीटा ढूंढना है। व्हाट इज tan थीटा? Is it opposite side upon adjacent side? Opposite side is minus ma, adjacent side is plus mg. mm गया, so can I say tan of theta is equal to a by g in backward direction?
ये बैकवर्ड डायरेक्शन मैंने किसकी वजह से लिखा? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ये माइनस साइन मैंने नहीं लिखा ना इधर, इसलिए मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा, क्योंकि वो लोग ऑप्शन ही ऐसे देते हैं। ऑप्शन कैसे देते हैं वो लोग? tan इनवर्स ऑफ a by g, tan इनवर्स ऑफ g by a, अगेन tan इनवर्स ऑफ a by g, अगेन tan इनवर्स ऑफ g by a। अब tan इनवर्स ऑफ a by g 2 बार दिया उन्होंने, तो एक बार बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बार बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। यस और तो 4 ऑप्शन हो गया ना। अभी इधर नो डाउट उन्होंने फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोला है, राइट, बट यू विल स्पेसिफाई दैट इन विच डायरेक्शन। कार अगर राइट साइड पे जा रहा है तो पेंडुलम लेफ्ट साइड पे जा रहा है, कार फ्रंट में जा रहा है तो पेंडुलम बैक में जा रहा है। यस और नो, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। रुको 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 रुको, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई एम श्योर ऑप्शन में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a by g करके कुछ दिया होगा। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ a by g। आई एम श्योर ये दिया होगा, बराबर। इन बैकवर्ड डायरेक्शन समझा, उन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन ये सब नहीं दिया होगा, बट वो और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन हुआ, वो और भी बेटर क्वेश्चन हुआ जब मैं डायरेक्शंस भी देता हूँ। यस और नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। प्लीज लेट मी नो, ये पार्ट समझा? What is F net? What is F net? Is it F horizontal का square plus F vertical का square? What is F horizontal का square? Is it minus MA square plus MG square? So what is F net beta? What is F net? Is it root of M square A square plus M square G square? So finally, what is the force net? Is it M out under root G square plus A square? अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर ये F net है तो नेट एक्सीलरेशन कौन हुआ फिर? ये ना, ये कौन हुआ फिर? A net। मतलब ये बॉब पे एक एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहे हैं, 2 एक्सीलरेशन एक्ट कर रहे हैं। G भी एक्ट कर रहा है, A भी एक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोगों को आंसर दो में से दोनों का लेना चाहिए, रिजल्टेंट का लेना चाहिए। अगर ये बॉडी है बेटा, इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स भी एक्ट कर रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो? देयरफॉर ये बॉडी पे 5 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ये दोनों नहीं। लॉजिक समझा? ये बॉडी पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? 2 ना, MA एंड MG। तो नेट फोर्स क्या हुआ? ये। Right now it is of the type F is equal to, this is of the type F is equal to M into A. Say force is MA, then can I say net force is mass into net acceleration. तो ये जो मैंने हाईलाइट किया वो कौन हुआ? नेट एक्सीलरेशन। मतलब मैंने, उन्होंने पूछा था एक ही चीज कि व्हाट इज थीटा, मैंने 2 और ढूंढा कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब एंड व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन। Please let me know. Have you understood this? Super duper sure. वापिस एक बार हो जाए। Come again. आगे जाके ये चारों क्वेश्चन आने वाला है। इधर उन्होंने सिर्फ थीटा पूछा है। इसके सॉल्यूशन में दिया है सब, या फिर सिर्फ थीटा का? सिर्फ थीटा का एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा, तो बाकी का आप ऐड कर लो। एंड आई थिंक दिस इज, चेक करो जरा आईपैड नोट्स में ये दिया है क्या? नहीं दिया है ना? ओके, तो अभी काम करो आप लोगों को जो मैंने प्रिंट आउट दिया था, जो प्रिंट आउट दिया था हॉट्स का आपके पास प्रिंट आउट है। दिस इज द बेस्ट वे टू मेंटेन द फाइल, सीरियसली। इसने एक ही फाइल में सब कुछ मेंटेन किया है। iPad notes, DCTs, whatever solutions are given, practice paper, her own work, very good. Maintain a file like this, good. HOTS का solution मिला बेटा आपको? उसमें चेक करो कि सिर्फ थीटा दिया है कि F net भी दिया है। सॉरी, सिर्फ थीटा दिया है ना? तो आप F net का स्टेप्स ऐड कर लो और आप लोग बैकवर्ड डायरेक्शन भी लिखो, आप लोग बैकवर्ड डायरेक्शन भी लिखो। एक काम करना है क्या, ये सॉल्यूशन ऐड करना है, आईपैड नोट्स में ऐड कर लो। आईपैड नोट्स में जिधर भी पेज खाली दिखता है, टाइटल दो असाइनमेंट 5, टाइटल दो असाइनमेंट 5 क्वेश्चन 4,
बाद में बोलो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेशन ऑल्सो इन फ्यूचर. बाद में बोलो there are 3 different styles of asking the question. Which are those 3 different styles? Style number 1, they will ask you theta. Style number 2, they will ask you F net. And style number 3, they will ask you A net. Net force, net acceleration and angle. सच्ची में फील हो रहा है ना, अभी साइंस में आ गए. हाई लेवल का फिजिक्स था स्कूल में, दूर दूर तक नहीं था. ओके, नो नीड टू गेट स्कैर्ड. तुम लोग जितना अपने दिमाग को पॉजिटिविटी दोगे ना, फिजिक्स इज इजी, फिजिक्स इज इजी, फिजिक्स इज इजी, बट इट डिमांड्स मोर हार्ड वर्क. बस यही सोचने का है. तुम लोग ये बोलोगे ना फिजिक्स इज टफ, फिजिक्स इज टफ, 3 बार बोला ना, चौथी बार तुम्हारा ब्रेन खुद तुमको ये मैसेज देगा, फिजिक्स इज टफ, you know, you can't do it, it is not your cup of tea. So no negative thoughts. सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? बीइंग पीसीबी स्टूडेंट्स, you have more habit of mugging up bio because there is no other way. बायोलॉजी आपको मेमोराइज करना पड़ता है. Now 80% of chemistry is theoretical, 20% is problems. फिजिक्स में एकदम उल्टा है, 80% problems, 20% theory. Now if you try to apply the same ideology of biology to learn physics, your ideology only is wrong. Biology is to be read, physics is to be written. फिजिक्स जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा. First we did minus A and G, so we can't use when we are calculating for net force, right? That time क्या फर्क पड़ता है बेटा? तो इधर जब लिखेगा तो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा. you had written only minus A, you had not written M at the first. वो मैंने माइनस ए क्यों लिखा था? अगर मुझे एक्सीलरेशन के टर्म्स में आंसर चाहिए, फोर्स के टर्म्स में आंसर चाहिए तो एम है, एक्सीलरेशन के टर्म्स में आंसर चाहिए तो एक कॉमन सेंस अप्लाई करो. आपके ऑप्शंस कैसे हैं? tan इनवर्स ऑफ a by g है कि tan इनवर्स ऑफ ma by mg है? a by g है, मतलब वो एक्सीलरेशन के टर्म्स में पूछा है उन्होंने. अगर मैं ma by mg कर देता हूँ तो मैंने फोर्स के टर्म्स में पूछा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक समझा? श्योर. So this was problem number 4. एक काम करें क्या, थोड़ा टाइम सेव करें. वैसे भी इसकी पिक्चर लेके मैं भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, तो ये सारे बोर्ड वर्क भी दिखेंगे आपको उधर. तो जो प्रॉब्लम अभी लग रहा है कि आपको कॉपी करना है, खाली उधर पेंसिल से लिख के रखो, वेट फॉर बोर्ड वर्क. अभी लेके मैं तीनों लेक्चर के बाद भेज देता हूँ ग्रुप पे. लास्ट टाइम का बोर्ड वर्क मैंने कल भेजा, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्लास में मैं लेना भूल गया था पिक्चर. तो मैंने और कोई क्लास में जब लेक्चर लिया ना, I took the picture and I had sent it to you yesterday. Sure. Are we on question number? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो. 5 से लेके 16 तक सब हो गया. चेक कर लो प्लीज, 5 से लेके 16 तक सब हो गया. 17 हम लोग कर ही नहीं सकते फिलहाल. 9th वन नहीं हुआ है. ओके, 17 कर ही नहीं सकते, उधर लिख के रखो, वेट फॉर डेरिवेटिव्स. 17 जब तक डेरिवेटिव नहीं होता नहीं करने का. राइट? Are we left with 9th question also? एक बार चेक करो. Yes, we are left with 9th question also. Are we on 9th question? Concentrate. Now I am coming across one point, synopsis का point. Can the resultant be smaller in size than one of the vectors? Answer is yes. When the angle becomes obtuse. चेक करो बेटा, ये दोनों वेक्टर का साइज सेम है, बराबर? तो रिजल्टेंट कितना आया? √3. ये दोनों वेक्टर का साइज सेम है, रिजल्टेंट कितना आया? √2. ये दोनों वेक्टर का साइज सेम है, रिजल्टेंट कितना आया? √1. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे रिजल्टेंट का साइज कम होता है. यस और नो? इट इज समथिंग लाइक दिस. अगर बेटा ये 5 है और ये 12 है तो आई एम श्योर ये 13 है, बराबर? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है. अब ये तीनों में रिजल्टेंट कौन हुआ? ये हुआ एक्चुअली, बिकॉज पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट हुआ.
तो ये डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हुआ. इज दिस द रिजल्टेंट? इज इट स्मॉलर देन वन ऑफ देम? ये कब हो सकता है? when the angle is obtuse. ये कब हो सकता है? when the angle is obtuse. the resultant is smaller in size. एक दूसरा सिंपल एग्जांपल देता हूँ बेटा. इसका साइज है 5 न्यूटन और इसका साइज भी है 5 न्यूटन. दिस इज फोर्स नंबर 1, दिस इज फोर्स नंबर 2. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 0. 0 is less than this 5 also and 0 is less than this 5 also. That means the net force is less than the components. So is it possible that the net force is smaller in size? Answer is yes. Under what circumstances? When the angle is obtuse. Book के synopsis पे जाओ बेटा. Book के synopsis पे. It should be I think point number 35 या तो 36. It should be point number 35. हाँ, it should be point number 35 या तो 36. Check करो please. Check करो. Is it 36 point? आराम से पढ़ो. आराम से पढ़ो. Can the resultant be of size smaller than the components? Answer is yes. Answer is yes. When the angle is obtuse. When the angle is obtuse. हो गया बेटा? Okay, now concentrate on this question. Question number 9. Doubt is stomach stiffen as your and smell like rotting bread. Sorry, come again. Someone's forgotten that tiffin your and it smells like rotting bread. Please give it back fast. You should have told me this in the beginning only. Sorry for that. ये कोई भूल गया है? तुम लोग यार क्लासरूम ध्यान दो. एकदम स्मेल आ रहा है क्लास में. ये कल कोई भूल गया था. कितना टाइम से होगा वो? सॉरी बेटा. यू वांट मी टू यूज द रूम फ्रेशनर? इट्स फाइन. पहले ही बोल देने का ये सब. तुरंत इतने टाइम से टॉलरेट कर रही है. कितना 45 मिनट्स हो गए लेक्चर. ओके, 9th क्वेश्चन चेक करो. The resultant of two forces acting at an angle of 120 is 10 kilogram weight and is perpendicular to one of the forces. Very beautiful question. Very beautiful question. ध्यान से देखो बेटा. डायग्राम से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा. ये फोर्स नंबर 1 है, राइट? ये रिजल्टेंट हुआ. सोचो, बिकॉज उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस. प्लीज लेट मी नो. ये बात समझा? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स नंबर 2 इधर होगा. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स नंबर 2 इधर होगा. प्लीज लेट मी नो. अंडरस्टूड? अब एकदम ध्यान से देखो मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 90 डिग्री हुआ. उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं. सोचो बेटा, ये एंगल 30 डिग्री हुआ. क्यों? परफेक्ट. ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ. ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ. बराबर? ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ. समझा कि वापिस बोलो? आप लोगों को या तो F1 पूछा होगा या तो F2 पूछा होगा. मैं काम करता हूं, मैं दोनों ढूंढता हूं. उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड आउट दैट फोर्स. विच फोर्स? रिजल्टेंट जिसको परपेंडिकुलर है वो फोर्स उन्होंने पूछा है. उन्होंने पूछा है F1, राइट? मैं ढूंढ रहा हूं F2 ऑल्सो. एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. समझा आपकी बात बाउंसर? सुपर श्योर. अब अगर बेटा ये F1 है तो ये F1 हुआ कि नहीं? बराबर. आप लोग ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो. ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो. मैं 3 रिलेशंस लिखता हूं, राइट? मुझे FR पता है. शायद FR पता है. व्हाट इज द साइज ऑफ FR? 10. बराबर. मैं sin 30 लिखूंगा, मैं cos 30 लिखूंगा और मैं tan 30 लिखूंगा. बेस्ट वे टू डू इट. व्हाट इज sin 30 फ्रॉम द डायग्राम? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो. इज इट F1 अपॉन F2? तो ये बेटा ये मेरे कोई काम का नहीं है. रीजन दो अननोन्स है. व्हाट इज cos 30? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो. सो इज इट FR अपॉन F2? राइट? सो कैन आई से cos 30 is √3/2. दिस इज इक्वल टू FR. FR is 10 अपॉन F2. तो F2 कितना आया? 20 अपॉन √3.
आई एम श्योर ऑप्शन में ये होगा, नहीं है? ओके, देन यू आर सेफ, देन यू आर सेफ, पूछा भी नहीं था. ओके, अभी tan 30. व्हाट इज tan 30? Is it opposite side upon adjacent side? Is it f1 upon fr? What is tan 30? 1 by root 3. Is it f1? I do not know. And f2, fr, sorry, was 10. So can I say f1 is equal to 10 upon root 3? Check करो please. Check करो. Sir, in the solution, I think I have found the F2, but it's 5. Sorry. Is this F2 the same thing or that? Let me check the solution. तुम लोग ये फाइल बराबर से मेंटेन करो, कुछ भी किधर भी पड़ा है. लुक एट दिस, बेस्ट वे. हाँ, तो वो रॉन्ग हो गया, बराबर. 10 इंटू दिस इज 10 इंटू, उन्होंने F2 ढूंढा है ना, F2. F2 is R cos 30. Let me check. No problem. वापिस चेक करते हैं. Sin 30 is of no use because F1 and F2 both are unknown. Cos 30 is बाजू वाला upon hypo. So it is cos 30 is root 3 by 2. Right? Sin 30 is half. Cos 30 is root 3 by 2. हाँ, तो wrong है. ये right है बेटा, ये right solution. वैसे भी अपने को F2 ढूंढना ही नहीं था. वैसे भी अपने को F2 ढूंढना ही नहीं था. मतलब F2 हम लोग रिजॉल्व करके क्यों नहीं निकाल सकते? F2 उन्होंने दिया हुआ है. F2 रिजॉल्व करके क्यों नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. 1 and 2. तो इससे भी कैंसिल कर देना होगा. हाँ, कैंसिल कर दो, कैंसिल. ये परफेक्ट सोल्यूशन. ये परफेक्ट सोल्यूशन. FR square plus F1 square is F2 square. FR square is 10 square. F1 square आया 10 upon root 3 का square. So this is 100 and this is 100 by 3. Right? So this should be 20 by root 3. That means this is 400 by 3. हो गया ना क्रॉस चेक. ये मैंने क्रॉस चेक किया. क्या किया समझा मैंने क्या किया? ये मेरे पास 3 फोर्सेस आ गए, 2 फोर्सेस आ गए, F1 and F2. और मेरे पास FR ऑलरेडी था. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये शेडेड ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज हाइपो स्क्वायर. वो मैं क्रॉस चेक कर रहा था. तो ये बराबर, ये बराबर. तो सर एंगल 120 है तो F1 और F2 इक्वल होना चाहिए. कैसे इक्वल होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो 120. अरे वो कमेंट अलग था. इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम साइज एंड इफ द रिजल्टेंट इज ऑफ सेम साइज. इफ द रिजल्टेंट सेम साइज का किधर है? कॉकटेल मत करो सब. वो मैं कमेंट क्या था कि if two vectors are of same size and resultant is of same size, then the angle should be 120. Angle 120 इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों वेक्टर का साइज सेम होना चाहिए. Are you getting this? नाइन्थ क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन और है जिसमें शायद क्वेश्चन एंगल 150 दिया था. एंगल 150 दिया था. तो if you can find out, हाँ ढूंढना था. राइट, करेक्ट. उसमें ढूंढना था. तो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड वो क्वेश्चन 31. वेरी गुड. 9th में लिखो बेटा, 9th में लिखो सॉल्व 31. 9th के तुरंत बाद 31 करना चाहिए. 9th के तुरंत बाद 31 करना चाहिए. आर वी ऑन 31? आर वी ऑन 31? आर वी ऑन 31? ये टाइप का सेक्शन भी टफ होगा, बी केयरफुल. इसके पीछे पड़ जाओ एकदम. Are we on 31? The resultant of two forces acting at an angle of 150. हाँ पूछ सकते हो. इसमें 31 भी सिमिलर है और 22 भी है. एक काम करो, 9th में लिखो सॉल्व 31 एंड 22. पहले एक काम करता हूँ, मैं 20 सेकेंड सॉल्व करता हूँ. पहले मैं 20 सेकेंड सॉल्व करता हूँ. ध्यान से सुनो. Given that A bar plus B bar is C bar. तो C बार कौन हुआ? रिजल्टेंट. गिवन A बार प्लस B बार इज C बार, तो C बार कौन हुआ? रिजल्टेंट. नाउ C बार इज परपेंडिकुलर टू A बार. रिजल्टेंट कोई भी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर तो ही हो सकता है जब उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो.
Can the resultant be perpendicular to one of the forces? Argument सुनो. Resultant is perpendicular to one of the forces. Is possible. One of the forces is possible only when. कभी possible होता है ये? Only when theta is obtuse. ये समझा कि बाउंसर गया? When theta is obtuse. समझा ये? इधर देखो. Is the resultant perpendicular to one of the forces? Yes. Is it possible? Answer is yes. When angle between them is obtuse. ये एंगल 120 था. अभी क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा. Have they said a bar plus b bar is c bar? Right? And they have also said a bar is c bar. अब एकदम ध्यान से सुनो. ये a bar है. ये c bar है. बराबर? ये a bar है. ये c bar है. तो b bar ऐसे ही होना चाहिए. समझा कि वापिस बोलू? ये a बार है, c बार a बार को परपेंडिकुलर है, a बार और c बार का साइज सेम है, तो b बार इधर किधर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? समझा? रिजल्टेंट कौन है इसमें? यस, दिस इज रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम कंप्लीट करो एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस क्वेश्चन इज. आप लोगों को एंगल बिटवीन a बार एंड b बार ढूंढना है. आप लोगों को एंगल बिटवीन a बार एंड b बार ढूंढना है. आपको पहले से ही पता है कि आंसर ऑब्वियस होना चाहिए. तो एक्यूट वाले ऑप्शंस गए. एक्यूट वाले ऑप्शंस गए. कौन से ऑप्शंस एक्यूट वाले? पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2. वो हो ही नहीं सकता है. पाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो एक ही बचा. लेकिन कैसे? दैट इज इंपॉर्टेंट. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. और कितने होने चाहिए? I am so proud of you. Very good. Is this dot 45 degree? Yes. Why? It is isosceles triangle. अगर ये 45 है, तो ये कितना है? Very good. और ये दोनों का टोटल? Very nice. What is dot plus 90 degree? Is it 135 degree? And 135 means 3 pi by 4. Oh lovely. इसके रिस्की ऑप्शंस क्या होते हैं मालूम है? 3 pi by 4, 3 pi by 2, 5 pi by 4, 7 pi by 4. जाओ मरो. अभी सबके सब ऑब्ट्यूज हैं. ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो सकता था. कैसे? एक्यूट तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, तो फर्स्ट दो ऑप्शंस गया. पाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ट्राइंगल कैसे बनेगा? पाई हुआ तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? तो ये भी नहीं हो सकता. बिल्कुल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. उसने क्या बोला कि सर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. आर्ग्यूमेंट इज यस. व्हाट इज सी स्क्वायर? सी स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ए स्क्वायर गया. इसका मतलब 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर. राइट? एक b गया, तो cos थीटा विल बी माइनस ऑफ b अपॉन 2a, माइनस 2a अपॉन b. और बाद में tan अल्फा ढूंढना पड़ेगा. बहुत लंबा हो जाएगा. ट्रस्ट मी, बहुत लंबा हो जाएगा. मार्वल में उन्होंने ये स्टाइल में दिया है. इसमें मैंने अभी b ढूंढा. व्हाट इज b? व्हाट इज cos थीटा? सॉरी, माइनस b अपॉन 2a. और बाद में tan अल्फा इज इक्वल टू दूसरे का sin थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का cos थीटा. राइट? तो cos थीटा की जगह पे मैंने b अपॉन 2a डाला. हॉरिबली लेंथी, हॉरिबली लेंथी. सो आई डोंट सजेस्ट. ये सबसे क्यूट है ना. Magnitude of a vector plus b vector is equal to c vector. Therefore, a vector minus c vector is equal to b vector. फिर a square minus a वही square हो plus b square minus 2. वही हो जाएगा बेटा. लेंथी हो जाएगा. लेंथी हो जाएगा. वही मेथड वो बोल रही थी. मेरे हिसाब से वो लेंथी हो जाएगा. हाँ, ट्राई करके देखना. दो अननोन है. तुझे b भी नहीं मालूम है, तुझे थीटा भी नहीं नहीं, हमें a और c के बिटवीन का एंगल मिल जाएगा. फिर उसको 90 से मालूम. a और c के बीच का. सॉरी हाँ, तुझे b और c के बीच b का. और c का एंगल. स्टेप्स देख कितना है. बहुत लेंथी है. ये तेरा बेटा एक स्टेप में हो. डोंट यू थिंक सो? क्या नहीं समझा? ये वाला पार्ट नहीं समझा?
कौन सा, ये वाला पार्ट नहीं समझा कि ये डायग्राम ही नहीं समझा? ग्रीन वाला ग्रीन नहीं समझा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. प्लीज टेल मी, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समझा? तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टू रेड डॉट्स? 45 डिग्री ईच. अगर बेटा ये 45 डिग्री है तो ये कितना है? 45 डिग्री है, बराबर. ये 45 डिग्री है. उन्होंने तुझे एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार पूछा है. सो इज इट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री? नाउ इज इट 135 डिग्री? नाउ इज इट 3 पाई बाई 4? अभी समझा? समझ में आया? आपका पहला लेक्चर भी कितना इंपॉर्टेंट था, वेयर आई टॉट यू हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. देखो इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी एंगल रेडियन में देते हैं, कभी डिग्री में देते हैं, कभी दोनों देते हैं, राइट? सो यू हैव टू नो एवरीथिंग. रिपीटेशन रिक्वायर्ड. ये 22nd क्वेश्चन था. अभी मैं डायरेक्ट आपको 31st पे लेके चलता हूँ. तो बेटा 9th क्वेश्चन में लिख के रखो, सॉल्व 22nd एंड 31st. 22nd और 31st दोनों में लिख के रखो, सिमिलर टू 9th, सिमिलर टू 9th. 31st मुझे नहीं लग रहा है मुझे सॉल्व करना चाहिए. आराम से बेटा पढ़ो. बराबर हो गया? चेक करो प्लीज. तो जिधर जिधर अपना टाइम सेव होता है, आई विल डू इट लाइक दिस. 31st क्वेश्चन जरा चेक करो प्लीज. आईपैड नोट्स पेज नंबर 14. और आप लोग 31st क्वेश्चन के बाजू में बुक में लिख के रखो, रिफर आईपैड नोट्स पेज 14. क्योंकि आईपैड नोट्स में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल वे में दिया होगा. सर दोनों फोर्सेस का पूछ सकते क्वेश्चन? हाँ पूछ सकते हैं ना, व्हाई नॉट. हमको दो फोर्सेस पता होता है तो हम लोग तीसरा ढूंढते हैं. स्कूल लेवल नॉलेज, पाइथागोरस थ्योरम. हमको एक फोर्स पता है और दो ढूंढना है, कॉलेज लेवल नॉलेज, रिजोल्यूशन. दो मालूम है, तीसरा ढूंढा, स्कूल लेवल सबको आता है. वो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर साइड 2. एक पता है, दो ढूंढ रहे हैं, दैट इज 11th स्टैंडर्ड नॉलेज, रिजोल्यूशन. 31st बेटा करने की जरूरत है क्या? सुपर श्योर. चलो कम बैक टू द सीक्वेंस प्लीज. आर वी नाउ ऑन 20? आर वी नाउ ऑन 20? 20. इजी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा. हैव दे गिवन मी वन इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन? 3t square times I plus everybody here. Position vector is given by 3t square times I plus 4t square times j plus 7k. अब इसमें आप I और j देखोगे ना तो they are time dependent, right? मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये वैल्यूज बदलेंगे. कॉमन सेंस अप्लाई करो. टाइम इज 1 सेकेंड तो ये होगा 3i plus 4j plus 7k. टाइम इज 2 seconds तो ये हो गया बेटा 2 स्क्वायर मतलब 4. 3 4s are 12i. ये हो गया 16. इज इट क्लियर? तो जैसे ये 3 4 का ट्रिपलेट बनता है वैसे 3 4s are 4 4s are, then 3 9s are 4 9s are and so on. उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 seconds. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. नहीं नहीं नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करो. डिस्टेंस कवर्ड इन 10 seconds मतलब मुझे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 0 seconds मालूम होना चाहिए और बाद में डिस्टेंस कवर्ड इन 10 seconds मालूम होना चाहिए. तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 0 seconds? इज इट 0i प्लस 0j प्लस 7k? ये समझा? जिधर जिधर टाइम दिख रहा है उधर उधर 0 डाल दो. बराबर. चलो नेक्स्ट आंसर बोलो बेटा. 300i प्लस 400j प्लस 7k. वेरी गुड. तो ये हुआ बेटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट. So what is the net displacement? Is it final minus initial? समझा? So second equation minus first equation. 7k गया. ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ. टाइम 0 पे मैं इधर था, टाइम 10 seconds पे मैं इधर हूं. तो what is the net displacement? Is it 300i plus 400j? उन्होंने मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है? Distance. So what is the meaning of distance? Magnitude of r. So is it square root of sum of squares of components?
जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है वैसे 300, 400, 500 का भी ट्रिपलेट होता है. दैट मीन्स आई कवर्ड हाफ किलोमीटर. दैट मीन्स आई कवर्ड हाफ किलोमीटर. बैंड बजानी है ना तुम्हारी, और अगर तुम लोगों को और नर्वस करना है देन दे विल गिव यू दिस ऑप्शंस इन किलोमीटर. They might give you these options in kilometer. So answer is half kilometer. 500 meter is half kilometer. 20th का आंसर समझा? Can you explain the first equation? तुझे 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो मालूम करना है. तो तू 0th सेकंड पे भी तो किधर है ना. मैं 0th सेकंड पे इधर हूँ, मैं 10 सेकंड पे इधर पहुंचा, तो 0th सेकंड पे मैं किधर हूँ. जिधर जिधर टी दिखता है उधर उधर 0 डाल दो बेटा. तो ये 0 आई हो गया, ये 0 जे हो गया, ये 7 के हो गया, क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं. सो वेयर वाज आई? आई वाज ऑन z एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7. वहां से मैंने मूव करना शुरू किया. तो अभी मैं z एक्सिस पे भी नहीं हूँ, y एक्सिस पे भी नहीं हूँ, x एक्सिस पे भी नहीं हूँ, xy प्लेन में भी नहीं हूँ, yz प्लेन में भी नहीं हूँ, z प्लेन में भी नहीं हूँ, मैं xyz स्पेस में हूँ. आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल. अभी समझा? जो नहीं समझ में आता ना बेटा बिंदास पूछो. डोंट वरी एट ऑल. डोंट वरी, इट्स ओके, रिलैक्स. बट एक ही है, घर पे जाके ये सब वापस पढ़ने. 9 सर का लेक्चर हो गया, वेडनेसडे चलो आओ जो टाटा बाय बाय. अभी सीधा सैटरडे पढ़ेंगे. ट्रस्ट मी द जॉब विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. जब मैं ये टाइप की चीजें लिखता हूँ ना, इट इज लाइक एवरीडे जॉब. राइट? हम लोग रोज खाना खाते हैं कि नहीं, रोज नहाते हैं कि नहीं, तो ये रोज करना तो ही दिमाग में जाएगा. बाद में रोते नहीं बैठने का, सर मेरा बायो में मार्क्स आता है, केमिस्ट्री में मार्क्स आता है, फिजिक्स में नहीं आता. पहले तो मैं ही चमार मार के दे दूंगा. कंपेयर ही मत करो पहले तो. फिजिक्स इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद बायो. स्टूपिड कंपैरिजन. राइट? इट इज समथिंग लाइक सर मुझे हिंदी बोलना आती है, गुजराती बोलना आती है, सर मुझे स्पेनिश बोलना नहीं आती. अरे हाउ कैन यू कंपेयर? यू आर इन इंडिया. तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, दे आर डे टू डे लाइफ स्पोकन लैंग्वेजेस. इवन इफ योर मदर टंग इज नॉट मराठी, 4 जन को सुनते हो तो मालूम पड़ता है कि इसका मतलब गाली होता है, ये अच्छा बात है. सुनने के बाद भी मालूम पड़ता है. स्पेनिश कोई बोलता ही नहीं अपने आजू बाजू में. तो यू डू नॉट कंपेयर. तो फिजिक्स और बायो की गलती से भी कंपैरिजन मत कर. और पेरेंट्स को भी बोलना नहीं कर. मुझे पेरेंट्स के सर मारा बच्चा ने सर बायो में मस्त मार्क्स આવે છે, केमिस्ट्री में પણ આવી જાય છે, सर फिजिक्स में નથી આવતા. हाउ कैन यू कंपेयर? दे आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स. राइट? सो टेल योर पेरेंट्स आल्सो. And if your parents are by default doctors or engineers, they will not ask me this question because they know it. Okay? ये क्वेश्चन नॉर्मली कॉमर्स पेरेंट्स से आता है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या तो बिजनेसमैन होता है, उनका ये क्वेश्चन है. डॉक्टर ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है मुझे, क्योंकि उनको पता है, वो खुद पीसीबी का स्टूडेंट रह चुका है. राइट? क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा. ओ माय गॉड क्वेश्चन. बुक एकदम बंद कर दो. बुक एकदम बंद. ध्यान से सुनो बेटा. पूरा डायग्राम का गेम है, पूरा डायग्राम का गेम. एंड दिस क्वेश्चन कैन कम इन मैकेनिक्स आल्सो एंड लाइट आल्सो. मैकेनिक्स मींस आई एम throwing a tennis ball on the ground and the ball is bouncing, right? And otherwise a ray of light is falling on the mirror and that ray of light is reflected. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. ये जो डायग्राम है ना, इसके दो मतलब होते हैं. जब मैं इसको शेड करता हूं, इसके दो मतलब होते हैं. एक होता है रिजिड सरफेस, हार्ड ग्राउंड, और एक होता है मिरर. बराबर? तो ये हो गया बेटा सपोज हार्ड सरफेस. व्हाट इज दिस डॉटेड लाइन कॉल्ड? वेरी गुड, वेरी गुड. उन्होंने क्या बोला है? एक बॉडी है एंड इट इज गोइंग विथ वेलोसिटी v. It is going with velocity v, and then it is bouncing back with the same velocity. It is bouncing back with the same velocity. इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये speeds the same है. Speeds. Velocity same क्यों नहीं है? Very good, very good. उन्होंने ये इसको v1 वेक्टर बोला है, velocity y, और इसको v2 वेक्टर बोला है. अब ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ. v1 वेक्टर mod y is v2 वेक्टर mod y is v. Do you agree with me? Speed सेम है. अगर ये 10 meters per second है तो ये भी 10 meters per second है. If this is the ball, then this is the ball after bouncing from the ground. ये समझा? ये थीटा दिया है, ये भी थीटा दिया है. So is it like a ray of light
falling on the mirror, this is angle of incidence, this is angle of reflection, and I is equal to R. लॉजिक सेम हुआ, सुपर डुपर श्योर. उन्होंने बोला है चेंज इन मोमेंटम ढूंढो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? जानबूझ के उन्होंने क्या किया है ना, दिया है वेलोसिटी और पूछा है मोमेंटम के बारे में. अप्लाई कॉमन सेंस, ये बॉल का कुछ तो मास होगा ऑब्वियसली, करेक्ट. अभी जो मेरे पास जो वेक्टर्स अवेलेबल है उसको मैं रिजॉल्व करता हूं. रिजॉल्व, ये मेरे पास टिल्टेड वेक्टर है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. मैं जानबूझ के दो अलग कलर्स यूज कर रहा हूं. ध्यान से देखो, 1 and 2, right? Because this is incoming vector, therefore this is incoming, and therefore this is also incoming. They are going towards a point. ये कौन सा वेक्टर है बेटा? इनकमिंग क्या आउटगोइंग? इनकमिंग. इसको इनफ्लक्स भी बोलते हैं. हम लोगों ने जो फ्लक्स का आर्टिकल किया था ना, फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ थिंग फ्लोइंग. इज दैट क्लियर? दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लक्स. ओके, व्हाट इज दिस? इनिशियल वेलोसिटी. तो व्हाट इज दिस? उसका कंपोनेंट. व्हाट इज दिस? उसका कंपोनेंट. सोच के बोलो बेटा, ये कंपोनेंट कौन सा? अरे mg क्यों आएगा इसमें मैडम? वेलोसिटी का प्रॉब्लम है तो mg क्यों बोल रहे हो? इसको क्या बोलोगे? v1 cos थीटा. वेरी गुड. और इसको वेरी गुड. तो इसको मैं v cos थीटा बोल सकता हूँ क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. और इसको v sin थीटा बोल सकता हूँ. समझा? ये पार्ट समझा? इनकमिंग वेक्टर, देयरफॉर इनकमिंग कंपोनेंट्स. अब ये कौन सा है? आउटगोइंग. तो ये वेक्टर मुझे कैसे ड्रॉ करना चाहिए? 1 and 2, बराबर. आउटगोइंग, आउटगोइंग सोचो, मतलब मेरे पास टोटली 4 चीजें हैं. रेड, रेड, ग्रीन, ग्रीन. ये रेड और ये ग्रीन एक्स एक्सिस पे है और ये रेड और ये ग्रीन वाई एक्सिस पे है. करेक्ट? What is change in momentum along x axis and what is change in momentum along y axis? What is change in momentum along x axis? What is change in momentum along x axis? And what is change in momentum along y axis? Is it final momentum along x axis minus initial momentum along x axis? समझा? And is it final momentum along y axis minus initial momentum along y axis? Please let me know. ये पार्ट समझा? सुपर डुपर श्योर. What is this component? आराम से सोच के बोलो. Who is this? ये कौन है? थीटा. तो ये कौन हुआ? v cos थीटा. ये कौन हुआ? v sin थीटा. तो ये किसके कंपोनेंट्स हुए? वेलोसिटी के कि मोमेंटम के? वेलोसिटी. मुझे कौन चाहिए? Therefore m. सोचो. Because momentum is mass into velocity. So component of velocity into mass is momentum का, right? अभी x component कौन सा है? फाइनल. सोच के बोलो, ये कौन है? mv sin थीटा. और ये कौन है? mv sin थीटा. सोच के बोलो, is it mv sin थीटा times j minus mv sin थीटा times j? I am so sorry. अच्छा, दोनों प्लस आई है कि एक प्लस आई और एक माइनस आई है? क्या लगता है? दोनों प्लस आई है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हेडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सीलरेशन. इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज 0. और ये एक्स एक्सिस पे 0 होना भी चाहिए क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे कुछ मोमेंटम बचता तो वो बॉल स्लाइड होता. इमेजिन एक टेनिस बॉल दिया मैंने और ग्राउंड पे थ्रो किया. थ्रो होने के बाद वो स्लाइड हो रहा है, राइट? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मेरा एक्स कंपोनेंट ही 0 है, मतलब ये बॉल स्लाइड नहीं होगा, बाउंस होगा. अब किसकी वजह से बाउंस होगा? सोचो. ये कौन है बेटा? ये फाइनल मोमेंटम कौन है? mv cos थीटा. सोच के बोलो, प्लस जे की माइनस जे?
वेरी गुड. माइनस mv cos theta माइनस जे. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड. ये ग्रीन वाला कौन है? पॉजिटिव वाई एक्सिस. और रेड वाला कौन है? राइट. what is difference of two equal and opposite numbers? What is 2 minus 2? 0. What is 2 minus minus 2? Double. Okay. What is this minus this? 0. Very good, because they were in the same direction. But what is this minus this? Double. check करते. Is it mv cos theta times j minus minus? So is it mv cos theta times j plus mv cos theta times j? Yes. Is my answer twice mv cos theta times j? Yes. मतलब भले x कंपोनेंट 0 हो गया, नलीफाई हो गया, लेकिन y कंपोनेंट तो है ना. वो y कंपोनेंट की वजह से बॉल बाउंस होता है. सोचो, कोई भी गेम में ये यूज होता है. आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट, राइट. बैट्समैन को श्योर है कि ये बॉल बाउंस होकर मेरे बैट पे आएगा. इमेजिन अ सिचुएशन, आई एम थ्रोइंग द बॉल स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड और जाके स्टंप को लगता है. बैट्समैन को जजमेंट ही नहीं आएगा सर ये बाउंस होगा कि नहीं होगा. मतलब बैट्समैन को ये जजमेंट होना चाहिए कि ये यॉर्कर लेंथ डालेगा कि घुगली डालेगा कि स्पिन करेगा. मतलब बाउंस होने के बाद वो बॉल किधर आएगा, वो बैट्समैन को जजमेंट होगा, तभी उसको हिट करेगा. इनकमिंग और आउटगोइंग की वजह से हुआ बाउंस. वेरी गुड, वेरी गुड. ये सब बेटा इसकी वजह से हुआ है, एरो की वजह से. अगर ये एरोज नहीं है तो आप इसको बराबर रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे. समझा कि वापिस बोलो. अभी सोचो ये क्या लेवल पे ये लोग क्वेश्चन डेंजर बनाते हैं. क्या लेवल पे. एग्जाम में मैंने सेम क्वेश्चन पूछा एकदम से स्मार्टली, खाली मैंने ये थीटा इधर शिफ्ट कर दिया और ये थीटा इधर शिफ्ट कर दिया, खत्म, गए तुम लोग. अभी मेरा आंसर क्या है? इसका मतलब अभी मेरा आंसर 2mv sin थीटा आएगा और ऑप्शन में वो होगा, क्योंकि ये मरेगा अभी और वो बचेगा. अगर बेटा ये थीटा दिया मैंने, मतलब ये 90 माइनस थीटा दिया, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. लॉजिक समझा. अभी मैंने थीटा किसके साथ दिया है? नॉर्मल के साथ कि सरफेस के साथ? अगर मैं सरफेस के साथ देता हूं तो मेरा आंसर क्या है? अभी कौन मरा कौन बचा? साइन मरा कॉस बचा. अगर थीटा में इधर दे देता हूं तो साइन बचेगा कॉस मरेगा. शायद 2mv sin थीटा भी होगा ऑप्शन है. तो उधर खाली इतना लिखो 2mv sin थीटा भी. If theta is given with surface and not with normal, आपका आंसर ये तब आएगा when theta is given with surface and not normal. आपका आंसर ए कब आएगा? when theta is given with surface. अच्छा, जब सरफेस के साथ एंगल देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल. उसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल. ध्यान से सुनो, डायग्राम बनाओ बेटा. ये रे ऑफ लाइट दिया, सपोज एंगल ये नहीं देके ये दिया, दैट मींस इफ द एंगल इज गिवन विथ सरफेस तो इसको बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल. ये लिख के रखो, लाइट के चैप्टर में काम में आएगा. यूजुअली द एंगल शुड बी गिवन विथ नॉर्मल, बट इफ दे वांट टू कंफ्यूज यू एंड इफ दे गिव द एंगल विथ द सरफेस देन दैट इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल. आप लोगों ने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू सुना है लाइट के चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. उसमें आई और आर दे आर एंगल मेड विथ नॉर्मल हमेशा. मतलब मैं जानबूझ के आपको डराने के लिए ये एंगल 30 दूंगा, आपको 60 लेना है. आपको 60 लेना है बिकॉज द एंगल्स आर ऑलवेज टू बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल्स आर ऑलवेज टू बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू. प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? आई थिंक आईपैड नोट्स में दिया होगा, दिया ही होगा बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है. पढ़ो बेटा, आराम से पढ़ो. सोचो अभी तक अपने 5 या 6 ही प्रॉब्लम्स हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7. We are on 8th question. 22 भी हो गया. 9th. मतलब कितना टाइम लग रहा है देखो, ऑलमोस्ट 80 minutes now. 9 questions. तो एवरेज टाइम कितना लगा? 8 to 9 minutes. मुझे सिखाने में उतना टाइम लग रहा है, तो सोचो तुम लोगों को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा. ओके, दैट्स व्हाई गिव ट्रेमेंडस अटेंशन to this assignment.
आराम से कैमरा हियर 21st क्वेश्चन समझा बेटा? श्योर? 22nd अपना हो चुका था, 23rd अपना हो चुका था. आर वी ऑन 24th? आर वी ऑन 24th? ओह माय गॉड क्वेश्चन लिखो बाजू में OMG, बाजू में लिखो OMG. इसको भी खोपड़ी मार्क करो, ये भी जल्दी क्लिक नहीं होते. राइट? आर वी ऑन 24th क्वेश्चन? ओके, कॉन्सेंट्रेट, डू नॉट स्टार्ट इट. आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 24 says, while traveling from one station to the other station, a car travels 75 kilometers north, then 60 kilometers northeast, and then 20 kilometers east. Then what is the minimum distance between two stations? Right? Everybody here. पहले तो मुझे ये directions पता होने चाहिए. Is it north, south, east, west? Yes or no? तो पक्का नॉर्थ ईस्ट बेटा एंगल बाइसेक्टर हुआ कि नहीं? साउथ वेस्ट भी एंगल बाइसेक्टर हुआ कि नहीं? राइट? तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं? तो ये दोनों एंगल्स कितने हुए? 45 डिग्री ईच. समझा? अभी ध्यान से देखो, आपका गाड़ी पहले कैसे जा रहा है. इज इट 75 किलोमीटर्स नॉर्थ? बाद में ये ईस्ट में भी नहीं गया, ये नॉर्थ में भी नहीं गया, ये बराबर नॉर्थ ईस्ट में गया. बराबर नॉर्थ ईस्ट, परफेक्ट 45 डिग्री. बराबर. ये कितना डिस्टेंस है? 75 किलोमीटर. ये कितना डिस्टेंस है? 60. और बाद में वो 20 किलोमीटर्स ईस्ट में गया. बाद में वो 20 किलोमीटर्स ईस्ट में गया. अभी आपकी मजबूरी है कि आप यहां से यहां डायरेक्ट जा नहीं पाए. राइट? मे भी बीच में रिवर आ गया, माउंटेन आ गया, जो भी आ गया. राइट? लेकिन आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है. समझा? अगर मैं यहां से यहां डायरेक्ट जा सकता तो ये फालतू में मैं टाइम पास क्यों करता. लेकिन हो सकता है मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट जाने का रास्ता ही नहीं है. बीच में माउंटेन है, रिवर है, ओशन है, जो भी, आई डोंट नो. तो मैं ऐसे गया, फिर घूम के गया, फिर इधर गया. सो दिस इज स्टेशन नंबर 1 एंड दिस इज स्टेशन नंबर 2. यस और नो? ये क्वेश्चन पूछा है वो. शुरू करूं? सुपर श्योर? बुक एकदम बंद. अगर इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढ सकता हूं मेरा आंसर. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया. इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया. हाँ, ऐसे ही इमेजिनरी. ओके, इसको मैं थोड़ा आगे लेके गया और इसको मैं थोड़ा पीछे लेके आया. बराबर? श्योर? अब ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये साइड कितना है? ये साइड 60. मेरे पास एक ही है 60. मुझे दो ढूंढने हैं, ये और ये. तो ये कौन हुआ? 60 cos 45. और ये कौन हुआ? 60 sin 45. तो इज इट 60 इंटू 1/√2. और ये भी हुआ 60 इंटू 1/√2. तो ये हुआ 30√2. और ये भी हुआ 30√2. Now what is 30√2? √2 is 1.414 into 3. That means 42.42 because 30. 1.4143 is 4.242. So 30 right? That is 42.42. तो बेटा ये साइड का साइज क्या हुआ? ये साइड का साइज क्या हुआ? वेरी गुड. और इसका साइज? वेरी गुड. तो ये साइड कौन हुआ? 42.42. और ये साइड भी कौन हुआ? 42.42. बराबर. नाउ लेट मी कॉल दिस ट्राइंगल एस ट्राइंगल ए बी सी. मुझे ढूंढना है AC. बराबर. व्हाट इज AB?
75 plus 42.42, right? So 75 plus 42.42 is 117.42. समझा? What about side BC? Shut up. ये 20 है. ये भी बोली मुझे नहीं मारना उसको. तू क्यों वो उधर से कूदेगी तो तू कूदेगी क्या पीछे पीछे? कुछ भी समझ में आ रहा है? अपना एग्जाम में मेंटल स्टेटस क्या होता है? संडे एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो केमिस्ट्री बायो ऑब्लिक मैथ्स या तो फिजिक्स बायो ऑब्लिक मैथ्स. और ये फिजिक्स में ये डोज है प्लस आगे के लेक्चर्स प्लस मेजरमेंट्स, वो सब याद रखना है कि दिमाग में खिचड़ी पकती है. पता चला तुम लोग सब फॉर्मूला पढ़ के गए थे, सब आईपैड नोट्स पढ़ के गए थे, सब सिनॉप्सिस रिवाइज करके गए थे, सब असाइनमेंट सॉल्व करके गए थे, सब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके गए थे, सब डीसीटी पेपर देख के गए थे, मार्वल देख के गए थे, फिर भी फुल मार्क्स नहीं आता है, राइट? जो एकदम कूल स्टूडेंट होगा ना, कूल, जो बिल्कुल डरेगा नहीं, पॉजिटिविटी, ठीक है यार अभी याद नहीं आ रहा है, 5 मिनट के बाद याद आ जाएगा. एक्सप्लेन योरसेल्फ दिस. ओके, चलो ये साइड कितना हो गया? 20 plus 42.42. So is it 62.42? बराबर. मुझे कौन सा गोल्ड मेडल लाना है एग्जैक्ट आंसर लाके? हाँ, ध्यान से क्यूटनेस देखो, क्यूटनेस. Is it approximately 120? Is it approximately 60? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम. अब अगर ये साइड 120 है और ये साइड 60 है, तो ये साइड कितना होना चाहिए? Is it root of 120 square plus 60 square? Is it root of 14400 plus 3600? So is it root of 18000? Right? Now 18000 is root of 180 into 10. Root of 180 lies between 13 and 14. Because 13 का स्क्वायर is 169 and 14 का स्क्वायर is 196. तो मेरा आंसर 130 और 140 के बीच में होना चाहिए. चेक करो. इसमें सबसे डेंजर ऑप्शन कौन सा है मालूम? 155. स्टूडेंट क्या सोचता है? डिस्टेंस पूछा है. डिस्टेंस इज अ स्केलर. 75 plus 60 plus 25. अरे नालायक को, उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार नहीं पूछा है, उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस पूछा है. ये तुम्हारा मर्जी है, कितना भी टाइम पास करके जाओ ना. इधर जाओ, देखो इधर गए, बाद में बोले इधर एक अच्छा टेंपल आता है, चलो दर्शन करके जाते हैं. बाद में बोलते इधर एक रिवर आता है, थोड़ा स्विम करके आते हैं. बाद में इधर बोला कि इधर चलो घूम के आते हैं रिलेटिव को. वो तुम्हारा टाइम पास है बॉस. मैंने तुमको ये नहीं बोला तुम्हारा कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया. मैंने ये बोला कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 स्टेशंस. इज दैट क्लियर? श्योर? मुझे एसएल जाना है ना, तो मेरे पास 2 तरीके हैं. मैं बोरीवली जाऊंगा, गोराई क्रीक तक ड्राइव करके जाऊंगा, उधर पार्किंग में मेरा गाड़ी खड़ा कर दूंगा और बाद में फेरी लेके जाऊंगा. तो फेरी में मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ. और अगर मुझे गाड़ी चलाने का शौक है ना, तो मैं बोरीवली से नेशनल हाईवे पकड़ूंगा, भायंदर जाऊंगा, फिर सिटी के अंदर जाऊंगा, फिर गोराई क्रीक जाऊंगा. ट्रस्ट मी, गोराई क्रीक एंड एसएल 10 minutes. Right? By road, it is 1.5 hours. Traffic, 2.5 hours. Signals. Right? Tough था कि नहीं? Sure? सबसे वर्स्ट पार्ट ये वर्किंग था. समझा कि वापस बोलो? सुपर डुपर श्योर? आई एम श्योर मैंने एकदम ब्यूटीफुली दिया होगा ये आईपैड नोट्स में. जरा चेक करो प्लीज. तुम्हारा बाहर का कोई भी फ्रेंड तुम्हारे सामने इंप्रेशन मारे ना, अरे तुझे ये नहीं आता है क्या, ऐसे 3-4 क्वेश्चन लेके छू कर दो उसको. हाँ, खाली उसको छू कर. तो सुनने का नहीं, बाहर का बकवास कुछ भी सुनने का नहीं. जो सर बोलते हैं ना बस वही करो. हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते हैं तो हमारे अच्छे के लिए होता है हमेशा. आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कुछ भी बोलेंगे जिससे आपका लॉस होगा, आपको हर्ट होगा? नहीं ना. सेम इज विथ योर टीचर्स. तो बाहर का बहुत ज्ञान मिलेगा. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल. तो सब ज्ञानी लोगों से
सॉरी सॉरी Can you increase the chapter? सॉरी जब मैं बार पूछ रहा हूँ मतलब मुझे नहीं करना है. Look at this. I am hard working person. You are hardly working. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24. समझा बेटा? आर वी ऑन 29? एक मिनट, जरा जरा इसका कैलकुलेशन देखो, एकदम मस्त दिया है कि नहीं इधर? बराबर. आईपैड नोट्स पेज नंबर 15 चेक करो. क्वेश्चन के बाजू में एड्रेस लिख के रखो. बुक में क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखने का. 21 के बाजू में लिख के रखो. रिफर आईपैड नोट्स पेज 15. रिफर आईपैड नोट्स पेज 14. रिफर आईपैड नोट्स पेज 15. बुक में क्वेश्चन के बाजू में लिख के रखो. आर वी ऑन क्वेश्चन 29? Probably the last question of the day. Because हमको थोड़ा टाइम कम पड़ेगा, तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम जब मैं हीट का चैप्टर शुरू करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. उसके पहले ये सब खत्म करूंगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू गेट बोथ द बुक्स. हीट का बुक जो आज मैं दे रहा हूँ वो प्लस ये बुक. आर वी ऑन 29th क्वेश्चन? ओ माय गॉड, क्वेश्चन अगेन. Are we on 29th question? Probably the last question of the day. What is the meaning of this diagram? What is the meaning of this diagram and this diagram? जब मैं इसको शेड करता हूँ, इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो ये मिरर है, या तो ये रिजिड वॉल है. या तो ये मिरर है, या तो ये रिजिड वॉल है. अगर ये लाइट का चैप्टर है तो मिरर है, और मैकेनिक्स का चैप्टर है मतलब वॉल है. मतलब एक ये है और एक ये है. Is it clear? एक ये है vertical wall और एक ये है horizontal ceiling. Correct? There are two strings. One string is this way and one string is this way. Am I right? And there is one mass suspended from here. There is one mass suspended from here. And that mass is called as W. That means weight. बराबर? अभी सोचो ये वेट की वजह से स्ट्रिंग्स में क्या होगा? स्ट्रिंग्स में मतलब टेंशन इधर भी डेवलप होगा और इधर भी डेवलप होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है. मतलब टेंशन ये स्ट्रिंग में भी डेवलप होगा, ये स्ट्रिंग में भी डेवलप होगा. दे हैव गिवन द नेम्स एज OA. इसको उन्होंने O बोला है और ये पॉइंट को उन्होंने A बोला है. ये पॉइंट को मैं अपनी मर्जी के हिसाब से B बोल देता हूँ, चलेगा? दे या O&W के स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आएगा. वो तो वेट एक्ट कर ही रहा है ना बेटा, वो तो ऑलरेडी वेट एक्ट कर ही रहा है उधर. तो इधर भी टेंशन डेवलप होगा और वही टेंशन इधर शेयर होगा. करेक्ट? सॉरी, नो नो नो, डेफिनेटली नो. ये W है, राइट? अब ये टेंशन जो इधर हुआ ना डेवलप, वो शेयर हो गया. तो O&W के बीच में जो टेंशन है इज इक्वल टू OA का टेंशन OB का टेंशन. Yeah, it is distributed. I am having 100 rupees. I am giving 70 here, 30 here. I am giving 60 here, 40 here. और उन्होंने मुझे ये दोनों में से एक का टेंशन दिया और एक का टेंशन पूछा है. कौन सा टेंशन दिया है? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला दिया है. ये टेंशन कितना है? What is tension OB? 30 न्यूटन. Right? Tension along string OB is 30 न्यूटन. टेंशन along OA पूछा है. टेंशन along OA पूछा है और शायद वेट भी पूछा है, शायद. Am I right? Yes. शुरू करो. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. ये वेक्टर्स में से टिल्टेड वेक्टर कौन सा है? तो जो टिल्टेड होता है उसी को आप रिजॉल्व कर सकते हो, राइट? उसके लिए एंगल चाहिए और ये एंगल उन्होंने मुझे दिया हुआ है कितना, राइट? टिल्टेड वेक्टर कौन सा है? OA. इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं. 1 and 2. Please let me know. Have you followed this? Yes. Please let me know. Have you followed this? Yes. Correct? ये कौन होना चाहिए? ये टेंशन को अगर मैं T बोलता हूं, जो कि मुझे ढूंढना है. I am so proud of you. This is T cos 30. Very good. And who is this? T sin 30. Right? अभी तूने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, ये वाला टेंशन का, वो इसमें जस्टिफाई होगा. Where is the common meeting point of all these vectors? Very simple. राइट को लेफ्ट बैलेंस करेगा
अप को डाउन बैलेंस करेगा, फ्रंट को बैक बैलेंस करेगा। मुझे फ्रंट और बैक दिख ही नहीं रहा है इसमें, अप डाउन दिख रहा है, राइट लेफ्ट दिख रहा है। पहले आप लोग बोलो क्या करो, अप डाउन की राइट लेफ्ट? यू नो व्हाई राइट लेफ्ट? बिकॉज ये 30 आपको मालूम है और आपको t मालूम नहीं है, यस और नो? सो कैन आई से फ्रॉम द डायग्राम t sin 30 डिग्री is 30 न्यूटन, बराबर? सो t into half is 30, इसका मतलब t should be 60, बराबर? अभी क्वेश्चन में पहले कौन सा वर्ड है, वेट है कि टेंशन? बराबर, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मतलब ये मेरा सेकंड आंसर है। कौन से ऑप्शन में मुझे सेकंड आंसर 60 दिख रहा है? एक ये, लेकिन हो सकता है नन ऑफ दिस हो, मुझे नहीं पता है, तो मुझे वेट भी ढूंढना पड़ेगा। चलो कैसे लिखोगे? t cos 30 becomes weight, सोचो, t cos 30 becomes weight। अभी इधर देख बेटा, तूने जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ था ना, वो t cos 30 था, बराबर? चलो, what is t 60? What is cos 30? √3/2 should be w, and therefore w should be 30√3. w should be, समझा कि वापिस बोलो? कौन सा थियरम यूज हुआ, समझा? लामीज। बिकॉज ये फोर्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि अगर ये फोर्स पावरफुल है तो ये दोनों स्ट्रिंग को खींचेगा, राइट? अगर ये फोर्स पावरफुल है तो वेट ऊपर जाएगा, ये फोर्स पावरफुल है तो वेट राइट साइड पे जाएगा, वेट किधर भी नहीं हिल रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेलवे लाइंस, बिग बिल्डिंग्स, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीवेयर दिस इज यूज्ड। लॉजिक समझा? सुपर डुपर श्योर? कौन सा क्वेश्चन था ये? प्लीज स्टॉप हियर। एक काम करना बेटा, ये जो आईपैड नोट्स दिए हैं ना, ये 3 क्वेश्चंस खाली पढ़ के आ, नहीं समझा कोई बात नहीं, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर हीट, राइट? होमवर्क फॉर यू, वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। संडे एग्जाम में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज, संडे एग्जाम में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज। It will gradually become tough for you people to score full marks. Okay, पहले एग्जाम में कितने लोगों को फुल मार्क्स आए थे? बहुत सारा चॉकलेट बांटा था। दूसरे एग्जाम में कितने लोगों को फुल मार्क्स आया? बंद करो।